म-
Good evening, sir. We'll start the session within 2 minutes. Okay. Am I audible? Yes, sir. Okay. I request the host to please keep everyone else muted. Am I audible to everybody? Hello, students. Good evening. Yes, sir, you are audible. A very good evening to one and all. I am immensely delighted to inaugurate the first training workshop session of this year 2022. I, Komadi Singh, Assistant Professor, Department of Applied Science and Humanities, and a member of Training and Placement Cell, Faculty of Engineering and Technology, University of Lucknow, feel happy to host this virtual meet. I would like to quote, "The sky is not the limit." I am convinced that the act of thinking logically cannot possibly be natural to the human mind. If it were, then mathematics would have been everybody's easiest course at school, and our species would not have taken several millennia to figure out the scientific method. To enlighten us with such thoughts, which would help our students think logically and identify the importance of logical reasoning and critical thinking in professional domain, today we have with us Mr. Pranav Dixit, sir. I heartily welcome you, sir. Sir has done BTech and also has a MBA degree. Sir is training teachers and students for more than half a decade. Sir is presently the Director of Upscale Learning and Training Center, Lucknow. Now I would like to present the forum to you, sir. Well, I think the madam has elaborated more than what was needed. I'm not such an enlightened guy. I'm just a very simple human being, and I welcome you all and thank you for inviting me. Look, students, as the topic given to me is relevance of analytical skills and logical reasoning in professional domain. So before I start, I assume that all the students which have joined this meeting belong to a professional background. I mean, the students might be doing either involved in management degrees or in engineering degrees. Am I right? Is there anybody from any else field? Engineering and management. So okay. As the representative of management, analytical skills and logical reasoning in professional domain.
So first of all, I would like to shed some light on what is analysis. Can anybody tell me what is analysis? Anybody of you would like to explain or speak something about analysis? Anybody? Nobody? Okay. Okay. So what is analysis actually? There are two words. The first one is analysis and the other one is synthesis. You know, when something is already given and you know the basic reason behind its existence and you analyze its patterns, and based on that patterns you want or you actually devise something new. Is everybody comfortable with my language or should I continue in Hindi also? सभी को समझ आ रहा है बेटा या हिंदी और इंग्लिश दोनों में बोलें? Sorry, nobody is audible to me. Hello. Yes, sir. The students are comfortable in English as well as in Hindi. You could please proceed. Okay. So first coming to the word, which is analysis, you know, analytical skills. So what is analysis is, everybody of us, हम सभी लाइफ में कुछ ना कुछ देखते रहते हैं, राइट? अपने एक्सपीरियंसेस को काउंट करते हैं और बेस्ड ऑन दैट एक्सपीरियंसेस वी ट्राई टू डिराइव समथिंग न्यू, we try to make decisions, we try to lead our life in a developing way, और हम ऐसी जगह जाना पसंद करते हैं बेस्ड ऑन दोज एक्सपीरियंसेस जो हमने एनालिसिस से सीखा है। अब बात यही आ जाती है कि व्हाट एक्चुअली एनालिसिस इज। तो क्या एनालिसिस करने के लिए हमें कुछ स्पेशली कोई सेट ऑफ प्रोसीजर चाहिए, कोई रूल चाहिए, कोई प्रिंसिपल चाहिए, या अपनी लाइफ में हम ऑलरेडी एनालिसिस कर रहे हैं या हम कर रहे हैं एंड वी आर नॉट अवेयर एट ऑल कि एक्चुअली वी आर एनालाइजिंग द फैक्ट्स एंड फिगर्स अराउंड अस। तो होता क्या है कि बचपन से हम एनालिसिस करते चले आते हैं अननोइंगली कि हम एक्चुअली एनालिसिस कर रहे हैं, राइट? एनालिसिस इन द वे, आप अपने कमरे में, सपोज आप अपने कमरे में रहते हैं और बहुत दिनों से रह रहे हैं, अगर लाइट चली जाती है या अगर आपकी आंख बंद हो जाती है, स्टिल यू नो वेयर द थिंग्स आर, आपको एक आइडिया होता है। लाइफ में ऐसे ही बहुत सारे इवेंट्स होते हैं जहां पर आप चीजों को एनालाइज करते हैं, दूसरों के एक्सपीरियंसेस से, अपने एक्सपीरियंसेस से, अपने मिस्टेक से, राइट? तो प्रोफेशनल डोमेन में ऐसी एनालिसिस का क्या काम है? उसके आगे एक और वर्ड जोड़ दिया गया है, स्किल। सो व्हाट इज स्किल? स्किल इज समथिंग विच वी लर्न, राइट, फ्रॉम अ स्पेसिफिक सेट ऑफ प्रोसीजर, या हमें कोई टीचर सिखाता है, कोई कह लीजिए कोई प्रोफेशनल आकर के हमको कुछ सिखाता है, तो उसको स्किल कहते हैं, जो कि हम किसी यूजफुल काम में उसको इंप्लीमेंट कर सकें और कुछ यूजफुल हम उससे सीख सकें, राइट? तो एनालिटिकल स्किल का मतलब क्या होता है? जब भी आप प्रोफेशनल डोमेन में आएंगे, तो प्रोफेशनल डोमेन में पहुंचने से पहले ही आपको पता होगा, अगर आप मैनेजमेंट के स्टूडेंट हैं या इंजीनियरिंग के हैं, तो कहीं ना कहीं मैनेजमेंट में कोई सब्जेक्ट आया होगा जहां पर आपको बताया जा रहा होगा दैट फॉर एंटरिंग इनटू अ सर्विस, स्पेशली अ प्राइवेट जॉब, रिक्रूटमेंट और सिलेक्शन जैसी प्रोसेसेस होती हैं। एवरीबडी वुड हैव हर्ड अबाउट रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन। कोई ऐसा है जिसको रिक्रूटमेंट या सिलेक्शन नहीं पता है, राइट? तो रिक्रूटमेंट और सिलेक्शन प्रोसेस जब होती है, तो इशू इज कि आप जिस प्रोफेशनल डोमेन में रह रहे हैं, there is plethora of talent, right? बहुत ज्यादा पॉपुलेशन है, we are a family of approximately 1.4 billion and all the contents of this population have very bright minds, right? तो इंडिया का जो मेंटल कह लीजिए कैलिबर है वो किसी से कम नहीं है, और हर साल millions of students step out of engineering degrees. They have engineering degrees. किसी भी फील्ड में जाइए, whether it's mechanical, it's IT, it's computer science या सिविल, कहीं पर भी आप जाइए, आप देखते हैं कि बहुत सारी भीड़ लगी हुई है, और उस भीड़ को बीट करना है आपको, और आपको सामने आना है। तो सामने आने के लिए जो फिल्टरिंग मैकेनिज्म है कंपनीज का या प्रोफेशनल जो भी डोमेन्स हैं, तो उनका सबसे पहला क्राइटेरिया क्या रहता है कि बच्चे की एनालिटिकल स्किल क्या है। जो भी कैंडिडेट आया हुआ है वो उसकी एनालिसिस कितनी स्ट्रांग है, बिकॉज
आपकी एनालिसिस पर ही उस कंपनी का फ्यूचर डिपेंड करेगा और आपकी एनालिसिस पर ही आपका फ्यूचर डिपेंड करेगा. इफ यू आर नॉट एनालिटिकल इनफ टू एनालाइज द सिचुएशंस अराउंड यू, अगर आप एनालिसिस नहीं कर पा रहे हो, अगर आप प्रेडिक्ट नहीं कर पा रहे हो कि आपके आसपास की सिचुएशन कैसी है, 1 साल 2 साल के बाद मार्केट स्ट्रक्चर क्या रहेगा, मेरे अंदर क्या स्किल है, मैंने क्या लर्न किया है और कहां पर अभी मेरे अंदर कमी है, अगर ये सारी चीजें आप एनालिसिस नहीं कर पा रहे हैं, then it will be very difficult for you to enter into the professional domain. And if by hook or by crook you enter that domain, then you will not be able to stay in that domain for very long. Because अभी आप देखिए रोबोटिक्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ये सारी बातें सुनी होंगी और पढ़ी भी होंगी. सो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इज इन वोग राइट नाउ. तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का वर्क क्या है, जो मैन पावर है, जो ह्यूमन रिसोर्स है, धीरे धीरे उसको क्या करेंगे, ये उसको ऑस्ट्रासाइज कर देंगे मार्केट से. क्यों करेंगे ऑस्ट्रासाइज? बिकॉज रोबोट्स जो है इकोनॉमिकल है, ऑफ कोर्स एक बार खरीदना है और लाइफ लॉन्ग चलेंगे कंप्यूटर्स की तरह से. ठीक है, मैकेनिकल है, प्रिसाइज है, अच्छा काम कर सकते हैं. तो इसका सीधा सीधा मतलब है द पीपल हु आर नॉट टैलेंटेड, द पीपल हु आर नॉट हैविंग द रिक्वायर्ड एनालिटिकल स्किल्स विल बी थ्रोन आउट. Sorry, it's a truth, a bitter truth, but it is actually, you'll have to cope with it. तो उसके लिए क्या तरीका है? इसका मतलब ये तो नहीं है कि जितने भी जॉब में बच्चे हैं या नए बच्चे जो पढ़ाई करके आ रहे हैं उनको जॉब में रखा ही नहीं जाएगा. ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, रखा जाएगा. पर रीजन क्या होना चाहिए? यू शुड बी वेल इक्विप्ड विद योर एनालिटिकल स्किल्स. अब एनालिटिकल स्किल्स होती क्या है? एनालिसिस, जैसे मैंने अभी आपको बताया कि अपने एक्सपीरियंसेस, यू आर लर्निंग फ्रॉम एक्सपीरियंसेस, यू आर लर्निंग फ्रॉम योर पास्ट, you are learning from your mistakes, your peers, your teachers, your family members and many other factors. पता ही होगा, सबको करते ही है, सब लोग लर्न करते हैं. तो क्या लर्न करना है प्रोफेशनल डोमेन में आने के लिए? क्या लर्न करना है, राइट? एक बहुत सिंपल सा एग्जांपल मैं भी आपको देता हूं. जैसे कॉफी हम सभी पीते हैं, हम सभी चाय पीते हैं, बहुत बेसिक सा एग्जांपल. So what we do is, hello, am I audible? Am I audible? Hello, am I audible? Yes, sir, you are audible. Can you see me, guys? Yes, sir, you are audible and we can see you. Okay. So I was saying कि भाई प्रोफेशनल डोमेन में एनालिटिकल स्किल का क्या रीजन है. मैं टी और कॉफी के एग्जांपल आपको दे रहा था. द फर्स्ट टाइम यू टेक अ सिप ऑफ टी, क्या होता है? आपके होंठ जल जाते हैं, राइट? द सेकेंड टाइम यू हैव इट, यू ऑलरेडी हैव एन आइडिया कि भाई कैसे करना है. ऐसे ही प्रोफेशनल डोमेन का सिस्टम भी है. जो मिस्टेक्स आपके प्रेडेसेसर्स बना रहे हैं, जिन्होंने किए हैं, तो आपको उनके मिस्टेक से लर्न करना है, अपने आप को इक्विप कर करके जाना है कंपनीज में, और ये देखना है कि कंपनीज क्या डिमांड कर रही हैं. पर उसके लिए जो एकदम बेसिक स्किल्स होती हैं वो आपको अभी करेंगे, राइट? बताता हूं क्या करेंगे. जॉट इट डाउन समवेयर. इफ यू आर हैविंग अ पेन एंड अ पेपर, प्लीज राइट इट डाउन. मैं कुछ चीजें बताता हूं, आप इसको नोट कर लीजिए, एंड दिस थिंग्स विल बी वेरी हेल्पफुल. द फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट थिंग इज फाइंड आउट द रीजन बिहाइंड एवरीथिंग. रीजनिंग आपकी स्ट्रांग होनी चाहिए. रीजन बिहाइंड एवरीथिंग का मतलब ये है कि आप जो जॉब कर रहे हैं वो जॉब आपने क्यों की. द फर्स्ट क्वेश्चन इन योर which your interviewer will ask you is why you want to why did you take this field. The second question will be why do you want to join our company, and the third question will be most relevant question, why should we hire you. तो ऐसे में क्या होता है कि कुछ क्वेश्चंस तो आप ऑब्वियसली पहले से प्रिपेयर होकर के जाते हैं, पर अगर रीजनिंग आपके पास में है, सो यू शुड बी वेल इक्विप्ड विद द आंसर्स कि भाई हमने ये डोमेन क्यों ज्वाइन किया था. आईटी इसलिए तो ज्वाइन नहीं किया था कि सीएस मिल नहीं रहा था. मैकेनिकल इसके लिए तो नहीं आ गए थे कि हमको लगता था मैकेनिकल का बूम बहुत है, राइट? तो आपके सेक्टर का स्कोप क्या है, उस सेक्टर का स्कोप आपको बहुत अच्छे से पता होना चाहिए. स्कोप को आप बोल्ड में, इटैलिक्स में लिख लीजिएगा. स्कोप इज द बेस्ट थिंग, ओके? और सबसे प्राइमरी चीज, आपने स्कोप नोटिस किया. दूसरी बात जो आपको आती है कि आप उस स्कोप में आप कहां स्टैंड कर रहे हैं, आपका रेलेवेंस क्या है भाई, कितना स्किल एक्वायर किया आपने उस एनालिसिस में, आपने कितना स्किल एक्वायर किया. एनालिटिकल रीजनिंग का मतलब सिर्फ ये नहीं होता है कि जो आपको पेपर में क्वेश्चंस दे दिए जाते हैं कि भाई फिल इन द ब्लैंक्स और इसमें नंबर सीरीज फिल कर दीजिए,
या ऐसा कुछ आपको क्वेश्चन दे दिया जाएगा, है ना, सिम्टम्स वाला है, कुछ भी उसमें दे देगा, तो वो उसका मतलब एनालिसिस नहीं है। एनालिसिस का मतलब है ओवरऑल एनालिसिस, राइट। हमको ब्रॉड एस्पेक्ट से देखा होगा, ब्रॉडर डोमेन में देखना होगा, अदरवाइज हम स्टैंड नहीं कर पाएंगे, और खासकर आज के सिनेरियो में बहुत मुश्किल है। तो क्या देखना है आपको? सबसे पहले आपको ये देखना है कि हमारा टैलेंट कितना है, हमने क्या सीखा है, और मार्केट का जो स्ट्रक्चर है अभी, उसके लिए हम कितने, आप कह सकते हैं कि भाई उसमें हम कहाँ स्टैंड कर रहे हैं, हम क्या स्टैंड कर रहे हैं, हमारा कोई स्टैंड है भी, या अगर हम इंटरव्यू देने जाएंगे तो अपने रिज्यूमे में हम क्या लिखेंगे, सॉरी करिकुलम विटे में क्या लिखेंगे, राइट। तो लिखने के लिए आपके पास में जो रिक्वायर्ड प्रोफेशनलिज्म है वो होना चाहिए, और उसके लिए आप क्या एनालिसिस करेंगे कि आपका सबसे स्ट्रॉन्ग पॉइंट क्या है। हर कंपनी में हर डोमेन के लोगों की आवश्यकता होती है। इफ यू आर इनटू द मैकेनिकल सेक्टर, मैकेनिकल में बहुत सारे तरीके की जॉब्स रहती हैं, आप जिस भी फील्ड में अच्छे हैं, बेटर गो फॉर इट। बताइए इंटरव्यू में, उसको एनालाइज कीजिए, वो स्किल आप एक्वायर कर लीजिए। जब इंटरव्यू में पहुंचेंगे, लोग यू आर अ फ्रेशर देयर, दे नो दैट यू आर नॉट हैविंग ऑल द रिक्वायर्ड स्किल्स फॉर परफॉर्मिंग अ पर्टिकुलर जॉब। दैट्स व्हाई आफ्टर सिलेक्शन दे विल फर्स्ट ट्रेन यू। तो जब वो आपको पहले ट्रेन करने वाले हैं, सो इट इज वेरी ऑब्वियस दैट दे आर नॉट एक्सपेक्टिंग that you are supposed to know everything, but yes, you are supposed to know everything at your level. अपने लेवल पर आपको सारी बातें पता होनी चाहिए, और वो आपसे ऐसे बिल्कुल नहीं पूछेंगे कि आप बस मग करके जाओ और वहां पर सुना दें। सारे क्वेश्चंस उनके इस तरह से होंगे कि आपको सोचना पड़ेगा। यू विल हैव टू डेवलप योर पोटेंशियल। जब तक अपना रीजनिंग स्किल आप डेवलप नहीं करोगे, तो वहां पर आप स्टैंड ही नहीं कर पाओगे। और जब वहां पर सारा मॉब जो आएगा, वो सारा का सारा आपके जैसा होगा। आपकी यूनिवर्सिटी में अच्छा पढ़ाया जा रहा है, इट्स ओके, अदर यूनिवर्सिटीज में ऑल्सो भी उतना ही अच्छा पढ़ाया जा रहा है, वो बच्चा जाएगा वहां पर, अगर स्टैंड करेगा, तो आपको भाई क्यों रिक्रूट करेंगे वो। ठीक है, एक स्ट्रांग आपके पास में, बहुत स्ट्रांग आप कह लीजिए कि एबिलिटी होनी चाहिए आपके पास में, कि भाई क्यों आपको सिलेक्ट कर रहे हैं वो। ठीक है, दूसरा जो बात इसमें आती है कि स्किल क्या है। एनालिसिस के मैंने आपको रीजन बताया, अब स्किल की बात आ जाती है कि स्किल क्या होती है। फिर ये एनालिटिकल स्किल का मतलब क्या है। एनालिसिस कर लेना इज ओके, अब इसमें इसको स्किल क्यों कहा जाता है। एनालिसिस एनालिटिकल स्किल इसलिए कही जाती है क्योंकि यही एक ऐसी स्किल है जो आपको बाकियों से अलग करती है, राइट। द क्राउड जो है, इट विल ब्रिंग यू आउट फ्रॉम द क्राउड, इट विल शेड सम वेरी ब्राइट लाइट ऑन यू, और जो भी आपका रिक्रूटर आया उसको पता चल जाएगा दैट दिस स्टूडेंट और दिस कैंडिडेट इज ब्राइट, he or she has something different which is not there in other candidates. तो ऐसे में क्या करना है भाई, क्या स्किल आपके लिए अंदर आपके अलग से होनी चाहिए, राइट। कंपनी में अपने काम के अलावा जिस भी कंपनी में आप जाएंगे, उसको प्रॉफिट कैसे पहुंचाएंगे। पास्ट में ऐसी क्या एक्टिविटीज थी जो उस कंपनी में नहीं हुई है और आपको होनी चाहिए। उस कंपनी की पास्ट हिस्ट्री क्या थी जो बाकी लोगों को नहीं पता होगा, ये भी आप एनालाइज करके जाएंगे, राइट। और अपना माइंड जो है उसको मेंटल एक्सरसाइजेस करके शार्प करेंगे। छोटे बच्चों को जो अगर पजल्स सुनाई जाती हैं या उनसे कही जाती हैं सॉल्व करने को, उसका मतलब ये बिल्कुल नहीं होता है कि यही पजल्स आपको कंपनी में रखी मिलेंगे एज इट इज। उसका मतलब ये होता है कि इफ यू आर इनटू दैट conundrum, so how are you going to cope with it, how are you going to come out of it, राइट। तो अभी से प्रैक्टिस शुरू करनी होगी। जो बच्चे थर्ड ईयर में है वो मान लें दे हैव नो टाइम, और जो बच्चे फोर्थ ईयर फाइनल ईयर में है उनके बारे में तो फिर अब ये सोचना है कि अगर उनको ये सोच रहे हैं कि हम क्या करें, तो बहुत लेट कर दिया आपने, राइट। क्योंकि जनवरी इज हाफ ऑफ द जनवरी हैज ऑलरेडी गॉन, और अभी रिक्रूटमेंट टाइम्स तो लास्ट ईयर से ही शुरू हो गई होगी, और अभी जिनकी जो नहीं हुए होंगे तो पूलिंग शुरू हो जाएगी, तो आप अलग अलग कैंपसेस में जाएंगे और वहां पर अपनी स्किल्स, तो अगर स्किल्स है ही नहीं बेटा तो फिर कैसे काम चलेगा। ठीक है, तो अच्छे से समझना पड़ेगा आपको कि रीजनिंग स्किल्स क्या है। सब्जेक्टिव नॉलेज जो है वो साइड का नॉलेज है, आप प्लीज ये समझिए। जब किसी भी कंपनी में आप जाते हैं, एज आई हैव टोल्ड यू, दे ट्रेन यू इन द वे दे वांट यू टू वर्क। हर कंपनी का अपना अलग प्रोफाइल है, हर कंपनी का अपना अलग क्राइटेरिया है, राइट। हर कंपनी का अपना अलग सब्जेक्ट है, अपना अलग प्रोसेस है, तो वो कैंडिडेट्स को अपने हिसाब से ट्रेन करते हैं। पर जहां पर रिक्रूटमेंट और सिलेक्शन की बात आती है, the foremost thing which they require, which they want from a candidate is whether he or she has sharp mind or not. और sharp mind के लिए वो क्या करेंगे,
वो आपको इसरो में तो बैठा नहीं देंगे कि भाई ये मिसाइल है, इसको लॉन्च करके आप दिखाइए। वो क्या करेंगे? दे विल गिव यू अ सेट ऑफ क्वेश्चंस, दे विल गिव यू अ सेट ऑफ सिचुएशंस, और इन सिचुएशंस को आप कितनी स्किलफुली, टैक्टफुली हैंडल करते हैं, वही डिसाइड करेगा आपका फाइनल स्कोर, और वही डिसाइड करेगा कि आप सिलेक्ट होगे या बाहर चले आओगे। बहुत सारे स्टूडेंट्स जो बहुत अच्छी पढ़ाई करते हैं और जाते हैं वहां पर इंटरव्यू देते हैं, पर इंटरव्यू में उनका कॉन्फिडेंस लेवल भी सही रहता है, उनको लगता है दे हैव डन अ मार्वेलस जॉब, बट जब बाहर आते हैं तो उनका सिलेक्शन नहीं होता। रीजन क्या होता है? क्योंकि सब्जेक्ट में तो बहुत स्ट्रांग होते हैं वो, पर रीजनिंग में वो क्या करते हैं? लैग कर जाते हैं। और रीजनिंग का मतलब सब्जेक्टिव रीजनिंग नहीं है, मैथमेटिकल रीजनिंग नहीं है। वहां का जो रीजनिंग प्रोफेशनल डोमेन में, स्पेशली इन द हायर एजुकेशन और स्पेशली प्रोफेशनल डोमेन इन द सेंस इन पर्व्यू ऑफ इंजीनियरिंग और इन पर्व्यू ऑफ मैनेजमेंट, आपका स्किल एकदम अलग है, राइट? हायर एजुकेशन में आप मास्टर्स, जिन्होंने मास्टर्स आप कह लीजिए कि मास्टर ऑफ आर्ट्स है, मास्टर ऑफ इकोनॉमिक्स है, उनका स्ट्रक्चर अलग है। उनको पढ़ाना है या रिसर्च करनी है तो उसमें इतनी आप कह लीजिए कि एनालिसिस की जरूरत उनको पड़ेगी, पर वो सब्जेक्टिव है। आप में इतना सब्जेक्टिव नहीं होता है, ठीक है? आपको करंट सिचुएशन को हैंडल करना आना चाहिए, आपको रिस्पॉन्सिबिलिटीज दी जाएंगी। जैसे जैसे आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज बढ़ेंगी किसी भी कंपनी में, प्रोफाइल में, तो ऑब्वियस ही बात है वो फिर आपको इंडिपेंडेंट छोड़ेंगे, और आपके फैसले, आपकी डिसीजन मेकिंग स्किल जो होगी वही कंपनी को, इट विल मेक द कंपनी राइट और इट विल ड्राउन द कंपनी। तो वो कभी भी ऐसे कंधों पर, ऐसे शोल्डर्स पर रिलाई नहीं करना चाहेंगे जिनके अंदर ये स्किल्स नहीं होती हैं। ओके, लेट मी गिव एन एग्जांपल। एक बहुत छोटा सा एग्जांपल है, उसको आप फनी भी कंसीडर कर सकते हैं। एक बार अफ्रीका में क्या हुआ, देयर वर 2 कंपनीज, राइट, वेरी बिग कंपनीज। अब कंपनीज का नाम मुझे मालूम नहीं है, हो सकता है कि एक सेइंग ही हो, पर somehow I got to listen about it in my management। तो उन्होंने कहा कि भाई अफ्रीका में 2 कंपनीज के जो भी रिसर्चर्स होंगे उनको भेजा गया। तो दोनों कंपनी शू मेकिंग कंपनीज थी, शूज और स्लीपर्स वगैरह बनाते थे। तो एक कंपनी से पूछा गया, उनका रिप्रेजेंटेटिव गया, तो उसने देखा दैट नोबडी इन अमेरिका wears shoes and nobody in America wears slippers। अब देखिएगा एनालिसिस एग्जांपल क्या होता है, राइट? तो उसने सोचा कि यहाँ तो कोई पहनता ही नहीं है, तो व्हाट द यूज ऑफ एस्टैब्लिशिंग अ कंट्री, सॉरी अ कंपनी हियर। जब कोई हमारा प्रोडक्ट ही नहीं बिकेगा तो हम क्या करेंगे ऐसी जगह पर आकर के? तो वो ही वेंट बैक और उन्होंने बताया अपने डायरेक्टर को, जो भी उनका बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स थे, उनको बताया सर देयर इज नो स्कोप, सॉरी, तो वहां पर इन्वेस्टमेंट का कोई मतलब नहीं है। द सेकंड मैन केम, right, from the second company. What he realized, what he saw and what he thought, now this is something, you know, which we are supposed to think upon। उसने बोला, the second man thought कि यहाँ तो किसी के पास में चप्पल है ही नहीं, there is no company, कोई इंसान यहाँ पर जूते नहीं पहनता है, किसी के पास में चप्पल नहीं है। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर यहाँ पर हम अपनी कंपनी स्टैब्लिश करेंगे तो हमको तो बहुत स्कोप है, स्कोप ही स्कोप है, राइट? हमारी तो मोनोपोली हो जाएगी, कोई और कंपनी ही नहीं है। अब देखिए एनालिसिस का ये स्ट्रक्चर देखिए कैसा है। एक ने क्या किया, एक ने बिल्कुल बट्टा लगा दिया, कंपनी को वाइप आउट कर दिया कि इतना बड़ा मार्केट था उसके हाथ में, लेकिन वो पूरी कंपनी ही वहां इन्वेस्टमेंट ही नहीं किया, दूसरे ने इन्वेस्टमेंट किया और बिलियंस कमाए उससे। दिस इज व्हाट एनालिसिस इज। और ऐसे ही एनालिसिस आपके साथ में भी होगी। जब भी आप कंपनी में जाओगे, नोबडी इज एंटायरली फुल ऑफ नॉलेज, entirely full of the subject whichever the company demands। क्या होता है, आप सभी के पास में अपनी अपनी फील्ड का जैसे जैसे कह लीजिए कि ग्रैबिंग कैपेसिटी आपकी, जो भी आपने सोसाइटी से अपने बचपन से जो कुछ भी सीखा है, ठीक है, जो भी फैक्टर्स आपने ओपन किए हैं, उन्हीं फैक्टर्स के बेस पर आपको नॉलेज होता है। इसीलिए हर बच्चा अलग होता है, क्योंकि आपका बैकग्राउंड अलग है, राइट? आपके फैमिली मेंबर्स अलग हैं। तो जब बैकग्राउंड अलग है, फैमिली मेंबर, तो आपकी रीजनिंग की एनालिसिस जो भी होगी वो भी अलग होगी। आप एक ही प्लेटफॉर्म पर सबको एक जैसा कभी कंसिडर नहीं किया जा सकता है। एंड द रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ द कंपनी व्हिच आर गोइंग टू हायर यू, दे आर वेरी वेल अवेयर ऑफ दिस, राइट? 10-10 20-20 साल के एक्सपीरियंस होता है, दे आर वेरी एक्सपीरियंस पीपल। आपसे बात करके, आपको देखकर ही उनको समझ में आ जाएगा कि इनको हायर करना है या नहीं करना। अगर कहीं किसी बच्चे का इंटरव्यू बहुत देर तक लेते हैं, दैट मीन्स कि आइदर दे आर वेरी इंटरेस्टेड कि इस बच्चे को लेना ही है, और थोड़ा सा और चेक कर लेते हैं, ठीक है। और अगर किसी का इंटरव्यू 2-4-5 मिनट में कह के ओके थैंक यू वी विल कॉल यू बैक लेटर, तो इसका मतलब क्या है कि दे आर नॉट इंटरेस्टेड यू। तो अगर आपको अपने आप में इंटरेस्ट उनका बढ़ाना है तो क्या करना होगा, जो भी आप दे रहे हैं
उसको प्रॉपर बैकअप के साथ में, बैकअप किस चीज का होना चाहिए, आपकी लॉजिकल रीजनिंग का बैकअप होना चाहिए, आपके एनालिटिकल स्किल्स का बैकअप होना चाहिए। आपने जो भी स्किल्स अक्वायर की हैं उनको इस तरह से प्रेजेंट कीजिए दैट योर हायर्स, जो भी आपको हायर करने आ रहे हैं उनको अट्रैक्ट करना चाहिए, अदरवाइज दैट वुड बी ऑफ नो यूज। ठीक है, तो नॉलेज कितना है इट डजंट मैटर्स। अब देखिए दूसरी बात इन्होंने कहा कि भाई लॉजिकल रीजनिंग क्या होती है ना, व्हाट इज लॉजिक। लॉजिक क्या होता है भाई, कोई भी चीज, क्या हर चीज में लॉजिक लगाया जा सकता है? कैन यू पुट लॉजिक इन एवरीथिंग? या लॉजिक आपने अभी तक अपनी लाइफ में यूज किया है? तो बच्चे बोलेंगे जो सीएस के आईटी के सर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में तो हमने बहुत लॉजिक इंप्लीमेंट किया है ना। मशीन वाले भी बोलेंगे हाँ हमने भी सर लॉजिक कोड किया है। पर यहाँ पर आपके प्रोफेशनल डोमेन में लॉजिक का क्या मतलब बनता है? ठीक है, देखो लॉजिक अभी जो मैंने आपको एग्जांपल दिया यही लॉजिक है। ठीक है, एक और छोटा सा आपको फनी एग्जांपल देता हूं अपनी इंजीनियरिंग लाइफ से, बहुत मजेदार एग्जांपल है। तो लॉजिक का क्या होता है कि मैकेनिकल का वाइवा था, मैन्युफैक्चरिंग वाज माय सब्जेक्ट, फर्स्ट ईयर का था, अभी भी मुझे याद है। सो वी वर सिटिंग इन फ्रंट ऑफ द एग्जामिनर, और एग्जामिनर ने हमारे स्टूडेंट से, जैसे हमारे फ्रेंड से पूछते जा रहे थे कि भाई क्या आ रहा है, तो बाहर बच्चे वेट करते हैं ना, क्या पूछ रहे हैं क्या पूछ रहे हैं क्या पूछ रहे हैं। तो एक बच्चे ने बोला कि पहले वाले क्वेश्चन का आंसर 0 था और दूसरे वाले क्वेश्चन का आंसर 1 था। आई डोंट नो कि क्वेश्चन क्या था, बस उसने यही बोला। दूसरा स्टूडेंट आया, उसने बोला मुझसे भी एक क्वेश्चन पूछा, पहले का आंसर 0 था और दूसरे वाले का आंसर 1 था। तीसरे हमारे रूबी के, उन्होंने पूछा क्या है, अब उनसे पूछा SFDMD बोलते हैं 0। अब एग्जामिनर हंसने लगा, बोला 0 क्या क्या मतलब है। फिर उसने कुछ और पूछा किसी चीज की क्या होता है, उन्होंने बोला 1। लॉजिक देखिएगा आप थोड़ा से बोला कि कुछ उनसे पूछा था कि कोई कंपाउंड बना हुआ है, तो वो माइल्ड स्टील का बना हुआ था, राइट। तो माइल्ड स्टील इज द आंसर, वो बस इतना ही बोला। तो ये जो भाई साहब हमारे साथ में गए थे, इनको कुछ समझ में नहीं आया, इनको बस समझ में आया 0, 1 और माइल्ड स्टील। तो इनको क्या किया, जब इनसे कुछ नहीं समझ में आया, टीचर को लगा कि इनको कुछ नहीं आता है, तो इनके सामने ब्रिटानिया मारी गोल्ड रखा हुआ था और उसने पूछा। अब इनकी लॉजिक देखिएगा, इनका कितना लॉजिकल रीजनिंग कितना स्ट्रांग है इनका। ही वाज कंप्लीट डफर, अभी भी है। तो उनसे पूछा कि भाई ये बताओ, ये जो बिस्किट रखा हुआ है ब्रिटानिया मारीगोल्ड, ये किसका बना हुआ है? अब भाई साहब की लॉजिकल रीजनिंग इतनी स्ट्रांग है कि इनको 0, 1 के बाद सीधा तीसरा याद आया, करे माइल्ड स्टील का बना हुआ है। सर ने कहा, सर ने हाथ जोड़े उनके, कहा बेटा वेरी गुड, तुम मतलब उज्जवल भविष्य हो इस देश का। एंड ही किक्ड हिम आउट। तो इस तरह की रीजनिंग नहीं होनी चाहिए, राइट। इतने डफर भी आप नहीं होंगे। तो लॉजिकल रीजनिंग का मतलब, इसका सिंपल मतलब क्या हो रहा है कि जो कुछ भी आप अपने बैकग्राउंड से सीख रहे हैं, ठीक है, उसका बेस्ट ऑप्शन आगे, बेस्ट अवेलेबल ऑप्शन क्या हो सकता है, यू शुड ऑलवेज बी रेडी फॉर इट। मैथमेटिकल रीजनिंग की क्लासेस, जैसा कि मुझे बताया गया था, थोड़ा सा टॉपिक मुझे थ्योरेटिकल लगा, अदरवाइज मैं आपको और एक्सप्लेन कर देता कि इसमें चीजें क्या, थोड़ा मैथमेटिकल रीजनिंग पढ़ा भी देता। पर आप लोग बिकॉज इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स हैं, तो इतना तो मुझे पता है कि जो भी लॉजिकल रीजनिंग के क्वेश्चंस आते हैं, जो एसएससी बैंकिंग वगैरह में पूछे जाते हैं, वो आपसे इजीली हो जाएंगे। ठीक है, एग्जामिनेशन के 2-3 महीने पहले कोई बुक उठा लीजिएगा, बहुत सारी बुक्स आती हैं, बहुत सारे आपके मॉक्स रहते हैं, कोई भी लगा लीजिएगा, वो हो जाएगा। पर वहां पर जो क्वेश्चंस आपसे इंटरव्यू में पूछे जाएंगे, वो क्वेश्चंस ऐसे बिल्कुल भी नहीं होंगे जो कि आप किसी इंटरव्यू में पढ़ करके और सीख लेंगे। ठीक है, तो ओवर द टाइम, ओवर द पीरियड ऑफ योर स्टडीज, ओवर द पीरियड ऑफ एक्सपीरियंस, जहां जब भी आप जॉब के लिए इंटरव्यू देने जाएंगे, तो उस समय क्या स्किल्स आपको एडॉन करनी है, क्या स्किल्स आपको एक्वायर करनी है, ठीक है, ये बातें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, यही आपको आज सीखनी है। तो कुछ की पॉइंट्स मैं आपको बता रहा हूं। सबसे पहले मैंने आपको बोला था कि आपका जो सब्जेक्ट है उसका स्कोप क्या है, इसको बहुत मोटे में लिख लीजिएगा। ठीक है, कि भाई स्कोप क्या है, स्कोप क्या होना चाहिए। दूसरी बात है कि उस स्कोप के अकॉर्डिंग आपके पास एलिजिबिलिटी है कि नहीं है। द सेकेंड वर्ड इज एलिजिबिलिटी। एलिजिबिलिटी का मतलब बेटा डिग्री नहीं होती है, राइट। एलिजिबिलिटी का मतलब डिग्री नहीं होती है। डिग्री तो बहुत सारे लोगों के पास में है, पर ये एलिजिबिलिटी, अब ये एलिजिबिलिटी आप बोलेंगे कि सर ये एनालिटिकल स्किल्स और लॉजिकल रीजनिंग में ये एलिजिबिलिटी की बात कहां पे आ गई, राइट। यही तो एनालाइज करना है प्रोफेशनल डोमेन में बेटा, यही तो एनालाइज करना है आपको। आपको इस एनालाइज करना है कि स्कोप क्या है मार्केट का हमारे लिए, 1 साल बाद में मार्केट कहां स्टैंड करेगा, कितनी गवर्नमेंट जॉब्स आएंगी, राइट, कितनी गवर्नमेंट जॉब्स आएंगी, प्राइवेट कंपनीज कितनी बचेंगी,
जहां पर हमको जाना है, जिस कंपनी में हमको जाना है, वहां पर वैकेंसी का क्या स्कोप है। ऐसा तो नहीं कि वहां पर रिट्रेंचमेंट हो रहा है, ऐसा तो नहीं है कि अभी क्या हो जाएगा कि मार्केट एकदम से फॉल कर जाएगा और हमारे लिए रिक्रूटमेंट के चांसेस ही नहीं रहेंगे। और अगर ऐसा होगा तब हम क्या करेंगे। ठीक है, 4 साल हमने फी पे की है, 1 साल भी रुकने का मतलब ये होता है कि हम बहुत पीछे हो जाएंगे। तो क्या एनालाइज करना है, यही एनालाइज करना है कि कितना पोटेंशियल है हमारे अंदर, कंपनी का स्ट्रक्चर क्या है, किस कंपनी में जाना है। 4-5 इंपॉर्टेंट टॉप कंपनीज की लिस्ट बनाइए। ठीक है, उनमें जो बच्चे हैं उनसे कांटेक्ट करने की कोशिश कीजिए, उन कैंडिडेट से बात कीजिए कि वहां रिक्रूटमेंट सिलेक्शन कैसे होता है, क्या प्रोसीजर है। उनके सेट्स लेकर के आइए, स्पेशली बैंगलोर में, हैदराबाद में, नोएडा में, जयपुर में सेंटर्स हैं और वहां से पेपर्स मिल जाते हैं। दिल्ली में है, आपको पेपर्स मिल जाएंगे, पेपर्स को लगाइए, उन पेपर्स को एनालाइज कीजिए, ये करनी है एनालिसिस। ओके, दिस इज व्हाट यू हैव टू एनालाइज। उन पेपर्स को एनालाइज कीजिए, देखिए कि एक पोटेंशियल कैंडिडेट से क्या एक्सपेक्ट कर रही है कंपनी, क्या चाहिए उसको, और वो जो क्राइटेरिया सेट कर रही है वो क्राइटेरिया आप फुलफिल कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं। आर यू मीटिंग द डिमांड्स, द रिक्वायरमेंट्स ऑफ द कंपनी और नॉट। अगर नहीं है तो भी घबराने की जरूरत नहीं है, देखिए क्या मांग रहे हैं और उसको पढ़ाई कीजिए, आ जाएगा आपको। राइट, नहीं हो रहा है, कहीं ट्रेनिंग प्लेसमेंट चले, वहां चले जाइए, या जो पर्टिकुलर स्किल मांगी गई है, स्पेशली आईटी सेक्टर में अगर आप जाएंगे तो लैंग्वेजेस पर उनका बहुत ज्यादा फोकस रहता है। और लैंग्वेजेस में तो लॉजिक आप समझते हो, अगर कोई भी लैंग्वेज आपने सीखी है, अब कोई भी लैंग्वेज आते हैं, आई मीन सी अभी होगा आपने सी पढ़ाया हुआ है, जावा पढ़ाया होगा, .NET वगैरह पढ़ाई होगी, तो ऐसी PHP वगैरह भी चल रही है। तो जो भी लैंग्वेजेस हैं, अगर इनके बेसिक रीजनिंग अगर आपको लैंग्वेज में बेसिक प्रोग्रामिंग नहीं आती तो आप किसी काम के नहीं है। अपनी कंपनी की बेसिक चीजें, अपने सब्जेक्ट की बेसिक चीजें अगर आपको नहीं आती तो फिर कंपनी वाले आपको सिलेक्ट नहीं करेंगे। इट डजंट मैटर्स कि हाउ हाई यू फ्लोट इन द स्काई, इट डजंट मैटर्स एट ऑल। ठीक है, बेसिक चीजें, बिकॉज द रिलेवेंस ऑफ बेसिक थिंग्स, वो आपसे बेसिक ही डिमांड करते हैं। आपको पता नहीं है भी कि वो किस डोमेन पर आपको लेकर के जाने वाले हैं, यू हैव नो आइडिया। और ये जो पढ़ाई करी है ना आपने, इसको अगर आप समझते हैं कि ये प्रोफेशनल स्टडी की है, देन यू आर रॉन्ग, यू आर कंप्लीटली रॉन्ग। यहाँ पर तो एक ग्लिम्स भी नहीं मिल रही है, इट इज ओनली अ टिप ऑफ द आइसबर्ग। 10% देखा है आपने, 90% आइसबर्ग का जो हिस्सा है वो तो भी बाहर है। और जब आप कंपनी में आओगे तो ऐसे होता ना कि हमने कैलकुलस पढ़ी थी, जिन बच्चों ने इंजीनियरिंग नहीं किया उनके लिए कैलकुलस का क्या रेलेवेंस है, ट्रिग्नोमेट्री का क्या रेलेवेंस है। ठीक है, सिचुएशन ऐसी ही हो जाएगी, आपको लगेगा कि इंजीनियरिंग में जो पढ़ाई हमने की उसका क्या रेलेवेंस है मार्केट में। क्योंकि मार्केट क्या होता है, आपका जो कोर्स है ना, उस कोर्स का ओरिएंटेशन इतना ज्यादा नहीं कर पाते हैं टीचर्स कि उसको रोज रोज बदले। लेकिन मार्केट का ओरिएंटेशन, मार्केट एवॉल्व कर रहा है, मार्केट इज इवॉल्विंग एवरी ईयर, एट एवरी 6 months देयर इज अ न्यू टेक्नोलॉजी। और उस टेक्नोलॉजी के साथ कैसे कोप करोगे, कोई नई टेक्नोलॉजी आती है, हियर अगेन यू हैव टू एनालाइज। कोई भी नई टेक्नोलॉजी आपकी कंपनी में आई है, आपके सेक्टर में आई है, लास्ट 2 to 3 years क्या क्या डेवलपमेंट्स हुए हैं, क्या इवोल्यूशंस हुए हैं, वो सारे डेवलपमेंट इवोल्यूशंस, उनकी डिटेल्ड स्क्रीनिंग आपकी नोटबुक में होनी चाहिए विद पिक्चर्स। अगर आपसे पूछा जाता है ऐसा कुछ तो आप उसको एक्सप्लेन कर पाए, अदरवाइज दे विल नॉट एंटरटेन यू एट ऑल। बेटा पूछेंगे आपसे, आप बता नहीं पाओगे तो फिर यही बोलेंगे कि भाई 4 सालों में क्या सीखा। कम से कम अपनी इंजीनियरिंग लाइफ में, द डे यू स्टेप इनटू योर कॉलेज एंड द डे यू स्टेप्ड आउट विद योर डिग्री, so they will ask what have you learned in these 4 years, क्या एडवांसमेंट हुआ है हमारी कंपनी में। जिस भी कंपनी में इंटरव्यू देने जाओगे तो क्या एनालाइज करना है कि कौन सी कंपनी है, कब स्टार्ट हुई थी, क्या मांगती है, कोर सेक्टर क्या है इनका, मेरी स्ट्रेंथ क्या है, मुझे कौन से कोर सेक्टर में जाना है, कैसे पहुंचूंगा, उसके लिए किस तरह की रीजनिंग पूछी जाती है, उसके लिए किस तरह के सब्जेक्टिव क्वेश्चंस आते हैं। यू शुड बी वेल अवेयर ऑफ ऑल दीज थिंग्स, अदरवाइज मार्केट में स्टैंड नहीं करोगे आप। धक्के जो लोग खाते हैं 1 साल 1.5 साल तक मार्केट में, वो बस यही एनालाइज करते रहते हैं कि भाई क्वेश्चंस क्या आने वाले हैं। ओके, जो कोर सब्जेक्ट्स हैं आपके, 2 सब्जेक्ट्स 3 सब्जेक्ट्स अगर हैं, इतना भी अगर आप पढ़ लोगे तो दे नो, जो है वहां पर जाते हैं उनको भी पता होता है कि ये सब्जेक्ट्स आपको जो पढ़ाए जाते हैं ये सिर्फ एक ओवरव्यू दिया जाता है और किसी का भी इसमें एक्सपर्टीज नहीं होता है। एक्सपेक्ट तो वो खुद ही बनाते हैं। इसलिए क्या होना चाहिए कि जितने सब्जेक्ट्स आप पढ़ रहे हो उनका ओवरऑल नॉलेज तो बेटा आपको होना ही चाहिए। अगर वो आपसे पूछते हैं व्हाट इज एन ऑपरेटिंग सिस्टम, तो इतना तो आपको पता होना चाहिए कि ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है, बूटिंग क्या होती है, इतना तो एक्सप्लेन करना आना ही चाहिए। राइट, और उसके पीछे से अगर मेमोरी के कॉन्सेप्ट्स आपसे पूछते हैं तो पता होना चाहिए। ठीक है, अगर आपसे पूछते हैं फोर्स क्या है, स्ट्रेस क्या है, मैकेनिकल वाले बच्चे, इतना तो आपको पता होना ही चाहिए, फिर कैसे काम करोगे। राइट, इतना भी नहीं पता होगा, बेसिक चीजें नहीं पता होंगी, यहीं पर लैग करते हैं बच्चे, यहीं पर लैग करते हैं।
क्योंकि वहां जो प्रोफेशनल्स बैठे होते हैं उनको सब्जेक्टिव एक कहीं एक्सपर्ट आ गया तो आ गया, वो भी इतने सालों से काम कर रहे होते हैं कि उनको अपने प्रोफेशनल डोमेन का नॉलेज होता है, बेसिक वही भूल चुके होते हैं। लेकिन इतना ज्यादा एप्लीकेशन उनके ऊपर हावी होता है कि वो चाहते हैं कि ऐसा बच्चा जिसको कोर नॉलेज हो। एप्लीकेशन तो वो आपको सिखा ही देंगे, यही एनालाइज करना है, राइट। जो मैथमेटिकल रीजनिंग वगैरह ये तो आप 1 महीने करोगे आराम से। इंजीनियरिंग के भी सब्जेक्ट्स हैं इतने, मुझे लगता है कि इतने ग्रो, यू आर ऑलरेडी ग्रोन अप कि आप इसको टैकल कर सकते हो। फिर देखिए प्रोफेशनल डोमेन में और क्या आपसे पूछा जाएगा, एनालिसिस का सेंस क्या होता है। एनालिसिस के साथ साथ मैं एक और चीज पर आपको थोड़ा सा फोकस करना चाहूंगा कि एनालिटिकल स्किल्स के साथ साथ शायद मैडम ने इसका दूसरा सेशन रख देती, या मैडम खुद शायद हैंडल करती है ये चीजें, अपनी कम्युनिकेशन का जो डोमेन है, तो इसमें कम्युनिकेशन से रिलेटेड बात भी मैं आपको बोलना चाहूंगा। आपकी लैंग्वेज जो है, लैंग्वेज है, आपका पर्सोना जो है, वो बहुत बड़ा इंपैक्ट डालता है वहां पर जा करके। और इससे आपके जो आपका कह लीजिए गेटअप है, आपके जेस्चर्स है, आपका पोस्चर है, इससे जो होते हैं या मेरा BMI थोड़ा सा ज्यादा हो गया सर, मैं तो हाइट मेरी थोड़ी सी कम है या मेरी हाइट थोड़ी सी एक्सेसिव है, ये सब मैटर ही नहीं करता है। कभी कैंडिडेट अगर आएगा आपको हायर करने के लिए, बेटा इतनी मत करना, लेकिन हाँ अगर आप पैंट शर्ट पहन के जा रहे हैं, द शर्ट इज नॉट टक्ड इन, ये वो बात जरूर नोटिस करेंगे, राइट। कुछ भी ऐसा अलग से जो कंट्रास्ट मारेगा तो वो चेक जरूर करेंगे, उसको वो एनालाइज कर लेंगे, आप करो या ना करो। और बहुत सारे बच्चों को ये पता ही नहीं होता कि ऐसे करके जाना है, टाई पहन करके जाते हैं, वो कॉलर से नीचे लटकी रहती है, वो कॉलेज वाली आदत डाल के रखी हुई है, सोचते हैं कि इट इज नॉर्मल। नो, इट्स नॉट अ न्यू नॉर्मल, ये बिल्कुल नॉर्मल नहीं है। अगर पहन रहे हो तो सही से पहन के जाना, वो एनालाइज कर लेंगे सारी चीजें। ओके, तो एनालिसिस में क्या क्या आपका गेटअप और लुक थोड़ा सा, और कम्युनिकेशन स्किल्स जो है। अब कम्युनिकेशन स्किल्स में क्या है, लैंग्वेज पर जो आपकी पकड़ होनी चाहिए, लैंग्वेज की एनालिसिस जरूर कीजिए आप। बच्चों के साथ में बहुत बड़ी प्रॉब्लम ये आती है, जो बच्चे दिल्ली में रहते हैं, हैदराबाद में रहते हैं, अच्छे कॉलेजेस में पढ़ते हैं, जहां पर उनको एक्सपोजर अच्छा मिलता है, कम्युनिकेशन अच्छा है थ्रू आउट, अगर इंग्लिश बैकग्राउंड के हैं तो अच्छा कर जाते हैं वो। रीजन क्या होता है कि अपनी बात को इंग्लिश में रखना, अपनी एनालिसिस को सही से कन्वे कर पाना बहुत अच्छे से उनको आता है। Whereas जो बाकी बच्चे होते हैं वो क्या करते हैं, वो हिंदी और इंग्लिश के ट्रांसलेशन में कंफ्यूज हो जाते हैं, या उनको समझ में नहीं आता कि क्या बोले कैसे बोले। और कुछ आपकी हैबिट्स ऐसी होती हैं जिनको आप इतने सालों से फॉलो करते आ रहे हैं, किसी ने आपको टोका नहीं कभी, so you feel like that they are normal, but actually they are not. Look, I would like to give an instance. एक बार क्या हुआ कि इंटरव्यू में, अगेन माय फ्रेंड्स, दिल्ली में इंटरव्यू हुआ और उसमें 2 स्टूडेंट्स थे, दोनों का एक साथ में उनका इंटरव्यू चल रहा था। सो वन कैंडिडेट, हम लोग IT से थे, तो एक स्टूडेंट था, ही स्टडी .NET एंड द सेकंड स्टडी जावा। अब एक बच्चा जो था वो यहाँ लखनऊ के रहने वाले थे साहब, हिंदी मीडियम के पढ़े हुए थे, तो यहाँ पर एक बच्चों में बहुत सारी प्रॉब्लम, जैसे मे आई कम इन करते हैं तो अपना हाथ आगे कर देते हैं, करते हैं ना ऐसा। और जैसे कोई कुछ पूछता है तो उनको समझ में नहीं आता है तो कहते हैं यस सर, यस मैम। तो यस मैम का मतलब पार्डन, एक्सक्यूज मी मैम, आई डिडंट अंडरस्टैंड, प्लीज रिपीट, इस तरह से नहीं कह पाते, तो वो सीधे बोलते यस मैम, यस सर। ये उनका क्या कहते हैं साइन बन गया है। अब इसी साइन में क्या हुआ, दोनों बैठे इंटरव्यू दे रहे थे, और ये बात मुझे पता नहीं चलती अगर साइड में जो भाई साहब इंटरव्यू दूसरे कैंडिडेट बैठे थे वो ना बैठे होते। तो इनसे मैडम ने पूछा, ये हिंदी मीडियम के पढ़े थे, तो मैडम ने इनसे पूछा, आर यू कंफर्टेबल विद जावा। ये भाई साहब .NET पढ़ कर गए हुए थे, .NET पे इनकी ट्रेनिंग थी। अब ये समझ नहीं पाए तो इन्होंने बोला यस मैम। मैम ने समझा कि ये कह रहा है यस मैम, तो मैम ने सारे क्वेश्चन से .NET पर पूछे, राइट, सॉरी जावा पर पूछे, और इनको समझ में नहीं आया। 20 मिनट बाद जब ये बाहर मुंह लटका करके आया तो बोली ये क्या पंगा हो गया यार, मैंने मैम से बोला कि मैंने .NET पढ़ा हुआ, मैम सारे क्वेश्चन जावा पूछ रही थी। तो द सेकंड कैंडिडेट रिप्लाइड टू हिम, उसने बोला कि तुमने ये यस मैम बोला ना, इस यस मैम के चक्कर में तुम्हारी बैंड बज गई। तो उसको तब समझ में आया, इंजीनियरिंग तक उनको भाई साहब को समझ में नहीं आया कि क्या कैसे सीखना है। ये सारी चीजें, छोटी छोटी गलतियां जो आप कर रहे हैं, उठने बैठने का आपके तरीके कैसे हैं, बात करने के तरीके कैसे हैं, छोटी छोटी कम्युनिकेशन जहां पर आप लैग कर जाते हैं बात करते समय, ऐसा तो नहीं लगता कि आप किसी को काटने लगते हैं, ठीक है। कई बार ऐसा होता है कि कैंडिडेट्स आर्ग्यूमेंट में चले जाते हैं, उनको पता ही नहीं होता है एक्चुअली वो आर्ग्यू कर रहे हैं। इन्हीं सब चीजों को एनालाइज करना है। पॉलिश, सब्जेक्टिव पॉलिश तो आप करोगे ही करोगे, वो तो आपको टीचर सिखा देंगे, और आपको पॉलिश क्या करनी है, आपकी पर्सनालिटी पॉलिश करनी है। जो ग्रैबिंग एबिलिटी है,
ग्रैब कैसे करोगे आप चीजों को, ठीक है। लर्निंग एबिलिटी को कैसे एनहांस करना होता है, इसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट बात ये होती है कि इंटरव्यूज को वॉच करिए आप लोग। जो कैंडिडेट्स हैं उनके इंटरव्यूज को देखिए। जरूरी नहीं कि आप प्रोफेशनल डोमेन में सिर्फ इंजीनियरिंग, मैनेजमेंट या लॉ के इंटरव्यूज ही देखें। जो बच्चे आईएएस के एस्पिरेंट्स हैं, पीसीएस के एस्पिरेंट्स हैं, आप उनके इंटरव्यू को भी देखिए कि जब उनको क्वेश्चंस नहीं आते, एनालाइज कीजिए कि जब उनको क्वेश्चन नहीं आते हैं तो कितनी पोलाइटली रिप्लाई करते हैं और किस तरह से उस चीज को कवर अप कर देते हैं, ठीक है। एग्जामिनर्स जानते हैं कि आप बच्चे हैं, ठीक है। एग्जामिनर्स को ये भी मालूम है कि आपको उनसे ज्यादा नॉलेज है, इसीलिए वो आपसे बहुत सारे क्वेश्चन पूछते हैं, राइट। अगर आप पूछ लेंगे सर आप हमें बताइए, तो वो शायद नहीं बता पाएंगे, ठीक है। बट ये पोलाइट नहीं है और ये इसका कोई सेंस नहीं बनता है। तो ये सारी बातें एनालाइज, मैंने क्या क्या बताया आपको एनालाइज करना है स्कोप, देन यू हैव टू एनालाइज द एलिजिबिलिटी। थर्ड थिंग व्हाट यू हैव टू एनालाइज कि कम्युनिकेशन कैसा है आपका, गेटअप कैसा है आपका, ओवरऑल गेटअप कैसा है भाई। सोबर लगते हो कि नहीं लगते हो, सोबर बातें करते हो कि नहीं करते हो, सोबर थॉट्स हैं कि नहीं है, ठीक है। सबसे बड़ी बात यही है, सोबर थॉट्स हैं या नहीं है। सोबर थॉट्स कैन मेक यू और दे कैन ब्रेक यू। वही वाला एग्जांपल कि अफ्रीका में गए, देखा एक को लगा कि स्कोप ही नहीं, दूसरे को लगा कि बहुत सारा स्कोप है। क्यों? क्योंकि थॉट्स सोबर हैं, ठीक है। ऑप्टिमिस्टिक अप्रोच है बेटा, ऑप्टिमिस्टिक अप्रोच इज वेरी नेसेसरी। कुछ चीजें इनपुट्स चाहिए होते हैं। अब ऐसे लिखना, एक चीज नोट्स बना लेना, लिखना इनपुट्स फॉर लॉजिकल रीजनिंग एंड क्रिएटिव थिंकिंग। इनपुट्स फॉर लॉजिकल रीजनिंग एंड क्रिएटिव थिंकिंग। क्या करना है भाई, कैसे लॉजिकल रीजनिंग आएगी और क्रिएटिव थिंकिंग कैसे होगी। ओके, पहला पॉइंट, सबसे पहला पॉइंट क्या होता है, ऑप्टिमिज्म। ऑप्टिमिज्म का मतलब क्या होता है, यू शुड बी होपफुल फॉर योर करियर, यू शुड बी होपफुल फॉर लर्निंग एंड यू शुड नेवर एवर थिंक कि मुझसे ये चीज नहीं होगी या मुझे ये बात नहीं आएगी, मैं कितनी भी कोशिश कर लूं। दिस इज व्हाट यू हैव टू एनालाइज। प्रोफेशनल में ऐसे ही लोगों की डिमांड होती है जिनको लोग ताने मारते हैं, राइट, कि आपसे नहीं हो पाएगा, बट दे आर वेरी ऑप्टिमिस्टिक और कभी ना कभी लाइफ की किसी ना किसी स्टेज में वो लगे रहते हैं और दे ब्रेक इट, ब्रेक इट। अगर आप ऑप्टिमिस्टिक नहीं हो तो आप सिंपल नंबर सीरीज टाइप क्वेश्चन भी इंजीनियरिंग में ऐसे होंगे जिनको मैथ लगा तो लिया है कि ठीक है मैथमेटिक्स ओके करना था, तो शुरुआत के 3 सेमेस्टर किसी तरह से पार किए हुए हैं, लेकिन रीजनिंग का नाम सुनते उनके हाथ पैर फूल जाते हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने कभी उसको चैलेंज एक्सेप्ट ही नहीं किया, ठीक है, नहीं, भाग गए, दे रन अवे। व्हाई दे रन अवे? बिकॉज दे आर अफ्रेड ऑफ दैट। क्यों अफ्रेड ऑफ दैट? ऑप्टिमिस्टिक नहीं है, ठीक है, कॉन्फिडेंस नहीं है उनके अंदर, वो बैठ नहीं सकते चीजों को लेकर के, प्रॉब्लम को लेकर के वो बैठ नहीं सकते हैं, परजीवरेंस नहीं है। अगर परजीवरेंस नहीं है तो फिर कैसे कैसे भाई फाइट करोगे। ऑप्टिमिज्म बहुत ज्यादा जरूरी है। जब ऑप्टिमिज्म आएगा तो आपके अंदर कॉन्फिडेंस ऑटोमेटिकली आ जाएगा, ठीक है। ऑप्टिमिज्म से कॉन्फिडेंस आता है, कॉन्फिडेंस से ऑप्टिमिज्म नहीं आएगा, ठीक है। यू कैन नॉट बी कॉन्फिडेंट अनलेस यू आर ऑप्टिमिस्टिक। तो अगर आप ऑप्टिमिस्टिक हैं, मन बोलेगा आपसे 1000 बार यार हमसे नहीं होगा, नहीं, वन स्टेप और आ जाएगा आपको। जितनी चीजें आपके कह रहे हैं, ऑल ऑफ अस आर बॉर्न विद सिल्वर स्पून इन आवर माउथ। आप सोचेंगे सर ऐसा कैसे, मैं तो लाइफ में बड़ा स्ट्रगल किया है। जितना भी टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट है, जितना भी इंफ्रास्ट्रक्चरल एडवांसमेंट आपके पास में है, आप देख रहे हो ये बेटा किसी ने बनाया है, हजारों साल तक रिसर्च हुई है, तब कहीं जाकर के आपको पहिया मिला है, ठीक है। व्हील का इन्वेंशन, वन ऑफ द बिगेस्ट इन्वेंशंस in the history of mankind। फायर का इन्वेंशन, डिस्कवरी, फायर की डिस्कवरी, इतना इजी नहीं था ये सारी चीजें, ठीक है। पर ऐसा बहुत सारी टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स हुई हैं जो आपको मिल गई हैं। आपको पता होगा कि एंटीबायोटिक्स नहीं थे पहले। ये जो वर्ल्ड वॉर 2 में अगर नहीं हुआ होता, वर्ल्ड वॉर 1-2 नहीं हुआ होता, ये जो मेडिसिन अभी आपको दी जाती है ना, कि खिला देते हैं कि ऑपरेशन के पहले कि भाई बॉडी में बिल्कुल फील नहीं होगा, क्या बोलते हैं उनको, अभी मुझे याद नहीं आ रहा। तो आप सिंपल सोचिए भाई, पेन किलर्स दिए जाते हैं, पहले नहीं थे, ऑपरेट करना है तो ऐसे ही एम्प्यूटेट करना है, ऐसे ही एम्प्यूटेट कर दिया, काट दिया, दर्द से चीख रहा है इंसान। ये सारे एडवांसमेंट आपको, आप इसीलिए मैं कहता हूँ यू आर बॉर्न विद अ सिल्वर स्पून इन अ माउथ। और शायद कहीं ऐसी प्रॉब्लम है कि आपको इतनी प्रॉब्लम्स फेस करने को नहीं मिली है, इसीलिए ऑप्टिमिज्म नहीं है, इसीलिए स्टैंड नहीं कर पाते, इसीलिए कॉन्फिडेंस नहीं आ पाता है। तो थोड़ा सा स्ट्रगल भी करो, रिसोर्सेज होने के बावजूद भी कोशिश ऐसी करो कि अगर मेरे पास ये रिसोर्स नहीं होता तब मैं इस प्रॉब्लम को कैसे टैकल करता। क्योंकि कंपनी में बताकर प्रॉब्लम्स नहीं आती हैं, इंटरव्यूअर आपसे बताकर क्वेश्चन नहीं पूछेगा,
ठीक है, पेपर आपको बता करके नहीं आएगा। सो यू शुड बी रेडी, वर्स्ट केस सिनेरियो के लिए आपको रेडी होना ही पड़ेगा। तो क्या देखा भाई, इनपुट्स लॉजिकल रीजनिंग के लिए क्या होना चाहिए, ऑप्टिमिस्टिक होना चाहिए, कॉन्फिडेंस होना चाहिए। थर्ड थिंग अब इसमें आती है आपको नॉलेज भी होनी चाहिए। नॉलेज को मैं थर्ड प्रायोरिटी रखता हूँ। क्यों भाई, नॉलेज भी क्यों होना चाहिए, नॉलेज नहीं होगा तो फिर बेस क्या लगाओगे, ठीक है, क्या रीजनिंग दोगे। ओके, तो नॉलेज होना बहुत जरूरी। नॉलेज कहां से लेंगे आप, नॉलेज कहां से लेंगे, सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि आप इंटरव्यूज, यू विल वॉच द इंटरव्यूज, फिर बुक्स में आप जाओगे, फिर आपके जो सीनियर्स हैं आपके बैच में, पता नहीं सीनियर्स हैं या नहीं, अगर हैं सो इट्स वेरी गुड, सीनियर से आप बात कीजिए। और अगर आपके भैया हैं, आपके सीनियर्स हैं, आपके बॉस हैं, उनके बॉसेस, उनसे मिलिए, राइट, मीटिंग कीजिए उनके साथ में, उनसे पूछिए कि किस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। अगर टाइम है तो एक बार जाइए, विजिट करके आइए, बैंगलोर चले जाइए, हैदराबाद चले जाइए। अभी तक खैर कोविड का स्ट्रेन है, नो प्रॉब्लम, जब थोड़ा सा लाइट हो जाए तब जरूर विजिट करके आइए। और जिनका एग्जामिनेशन हो जाएगा, राइट, रिजल्ट्स का वेट मत करिएगा, तुरंत स्विच कर जाइएगा कहीं अच्छी जगह पर। अगर कैंपस प्लेसमेंट में प्लेसमेंट हो जाता है दैट्स वेरी नाइस, नहीं होता तो आप वेट नहीं करेंगे, चले जाएंगे तुरंत, ठीक है। अदरवाइज ये जितनी एनालिसिस है, जितनी लॉजिकल रीजनिंग है, सारी इट विल ऑल गो इन वेन, सारी वेस्ट हो जाएगी, कोई मतलब नहीं बचता। तो और क्या, और इसमें कोई चीज रह जाती है, ऑप्टिमिस्टिक, कॉन्फिडेंस हो गया, नॉलेज हो गया। अब इसके बाद में बात ही इंफ्रास्ट्रक्चर का मतलब क्या है भाई, मैं कह रहा हूं कि इंफ्रा आपके पास में होना चाहिए। तो इंफ्रास्ट्रक्चर का मतलब क्या है, आपका जो भी डोमेन है, उस डोमेन के लिए जॉब के समय, जॉब करने से पहले या उसकी तैयारी करने के लिए जो भी टूल्स आपको नेसेसरी रिक्वायर्ड टूल्स आपके पास में है, अभी तक अगर वो इंफ्रास्ट्रक्चर कॉलेज प्रोवाइड कर रहा था या किसी फ्रेंड आपको प्रोवाइड कर रहा था, नाउ यू शुड हैव योर ओन सेट ऑफ टूल्स, राइट। जो भी टूल रिक्वायर्ड है, जो भी नोट्स आपको चाहिए, जो भी बुक्स आपको चाहिए, जो भी हार्डवेयर रिक्वायर्ड है, जो भी सॉफ्टवेयर रिक्वायर्ड है, प्लीज गो थ्रू इट, अच्छे से जानिए और उसकी अच्छे से जानकारी ले लीजिए। वहां पर जाने से पहले, किसी भी रिक्रूटमेंट ड्राइव में जाने से पहले आपको अपने टूल्स पर हाथ को चलाना आना चाहिए। यू शुड बी वेरी वेल इक्विप्ड विद योर टूल्स, यू शुड नो हाउ टू हैंडल देम, हाउ टू यूज देम एक्सट्रीमली स्किलफुली, क्योंकि वहां पर आपको जब यूज करने को देगा तो आप वहां प्रैक्टिस नहीं कर पाओगे, राइट। तो पहले से प्रैक्टिस Sir, I'm sorry to interrupt. yeah. Sir, I'm really sorry to interrupt. There are few Okay. students who want to ask questions, and the last 10 minutes are reserved for the question Okay. and answer round. Okay. Now I request the host to please enable the setting, and the students may raise their hands or leave the question in the chat box. So we have one question from a student, Pranjal Shukla, and he's asking that, sir, can you please refer any resource for practicing logical reasoning? Logical reasoning, okay. Look, for logical reasoning, when I used to prepare, there was a book known as R.S. Agrawal, R.S. Agrawal, and Ajay Sharma is also there. Ajay Sharma or R.D. Sharma book is there. Arihan publication की कोई बुक आप ले लो बेटा, ठीक है, दैट वुड बी मोर देन सफिशिएंट, या आरएस अग्रवाल, ओके। और बेस्ट आपके लिए यही रहेगा कि आप गो थ्रू द पेपर्स, किसी रिक्रूटमेंट टाइम में जो पेपर्स आए हुए थे वो पेपर्स कहीं से आप कलेक्ट कर लीजिए, क्योंकि यहाँ इंजीनियरिंग में या मैनेजमेंट में जो रिक्रूटमेंट ड्राइव होती है उसमें पेपर्स थोड़े से अलग पूछे जाते हैं, ठीक है। तो अगर वो आप कहीं से आपको मिल जाता है, दैट वुड बी बहुत अच्छा रहेगा आपके लिए, तो वहीं से आप कलेक्ट कर लीजिए। अदरवाइज मैंने आपको बताया आरएस अग्रवाल इज मोर देन सफिशिएंट, बहुत ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है। So we have one more question, and the question is that how to develop good communication skills and be formal. And be Formal, sir. फॉर्मल, अच्छा। बेटा फॉर्मल तो आप हमेशा रहते ही हैं, ठीक है। और गुड कम्युनिकेशन स्किल्स डेवलप करने का सबसे अच्छी बात क्या होती है, मैं आपको बताता हूं। सबसे पहले स्पीक द ट्रुथ, ठीक है। इफ यू डोंट नो द ट्रुथ, तो उसको इस तरह से पॉलिश करना आपको आना चाहिए कि वो ट्रुथ किसी को बिटर नहीं लगे। जो न्यूज़पेपर्स हैं, न्यूज़पेपर्स पढ़िए, अपने सीनियर से बात कीजिए, जिनसे डर लगता है उनसे भी बात कीजिए जाकर के, बजाय ये सोचने की कि हाउ विल दे रिस्पॉन्ड। उनके रिस्पॉन्स पर आप ज्यादा ध्यान मत दीजिए, आप ये देखिए कि आपका क्या इंपैक्ट पड़ रहा है उनके ऊपर। अगर आप किसी से बात करते हैं, लोग बाद में पूछिए उनसे
कि मैंने आपसे जिस तरह से बात की है, क्या आपको मेरी बात में कहीं लगता है कि थोड़ी सी एसिडिटी है, क्या एक्रिडिटी है, थोड़ी बिटरनेस है, या आपको लगता है कि मेरी बात सुनकर के आपको अच्छा लगता है? आप किसी से भी बात कीजिए, अगर आपसे बात करके लोग आपसे बात करना चाहते हैं, इसका मतलब ये है कि आपकी कम्युनिकेशन स्किल ऑलरेडी अच्छी है। ठीक है, ऑलवेज हैव ए स्माइलिंग फेस, सिचुएशन क्रिटिकल भी हो जाए फिर भी आपका फेस जो है स्माइलिंग रहना चाहिए। एवरी डे एड 1 or 2 न्यू वर्ड्स इन योर वोकैब, नॉट ओनली ऑफ इंग्लिश, किसी भी लैंग्वेज का कोई भी अच्छा वर्ड मिल जाता है उसको अपनी वोकैब में जरूर ऐड कीजिए और उसको यूज कीजिए, है ना। एरो सिर्फ रखने से काम नहीं चलेगा, उसको यूज कीजिए, इंप्लीमेंट कीजिए। देखिए कि आपके बॉस, आपके सीनियर्स, स्पेशली न्यूज में, टेलीविजन में जो शोज आते हैं, अच्छे अच्छे स्पीकर्स हैं, उनको सुनिए, देखिए वो अपनी बात के लिए कौन सी वोकैब को यूज करते हैं, उस वोकैब को कॉपी में लिखिए, एक पेज में पूरा वोकैब लिखिए, सेंटेंस फॉर्मेशन कीजिए और उसको कम से कम 10 बार यूज कीजिए, वो आपको याद आ जाएगी। ठीक है, बी इन कॉन्टेक्ट विद द पीपल हु एक्चुअली वांट टू डेवलप देयर कम्युनिकेशन स्किल्स। ऐसे लोगों को अपने आसपास ढूंढिए और उनके साथ में ग्रुप बनाइए। यू वोंट बी एबल टू डेवलप योर कम्युनिकेशन स्किल्स unless you actually communicate with the people who have better communication than you. ठीक है, जो भी अच्छा So we लगता है have आपको। one more question from Yeah. Sandeep Gupta, and the Okay. question is that how to overcome hesitation. How to overcome hesitation? किससे hesitation I would like होता the host to request the है, host to पहले ये please बताओ। unmute Sandeep Gupta. सर ड्यूरिंग सर इंटरव्यू के दौरान सर जैसे हेजिटेशन होता है ऐसा सर, हम कोई सर बात सर जैसे कह रहे हैं तो सर मतलब सर अगर स्पीकर सर जैसे मतलब बोल रहे हैं तो भी हेजिटेशन होता है सर किसी बात को बोलने में। अच्छा अच्छा अच्छा, हाँ देखो सर। हेजिटेशन बेटा एक्चुअली क्या होता है, अगर कोई अच्छा इंटरव्यूअर है तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, जितने भी आप हायर डोमेन में जाएंगे और जितने भी स्किल्ड इंटरव्यूअर्स होते हैं उनका काम ये होता है कि पहले जो भी कैंडिडेट आया है उससे फ्रेंडली बात करके उसको इतना रिलैक्स कर दे कि उसको बोलने में डर नहीं लगे। राइट, डर हमारे अंदर इसीलिए होता है जो कि हम ऐसे बैकग्राउंड से आते हैं जहां पर हमने अपने आप को बहुत ज्यादा ओपन किया ही नहीं कभी। फैमिली बहुत स्ट्रिक्ट थी, पेरेंट्स स्ट्रिक्ट थे, स्कूल में टीचर्स के रूल पढ़ते थे तो वहां नहीं बोल पाते थे, फिर बॉयज कॉलेज में पढ़े तो वहां सिर्फ बॉयज के बीच में रहे, और डिग्री कॉलेज में आए फिर बॉयज के बीच में रहे तो गर्ल्स से इंटरेक्शन हुआ ही नहीं। सिचुएशन क्या हो कि इंटरव्यू में पहुंचते हैं, सामने मैडम बैठी होती है, उनको भी एड्रेस करते हैं तो 2 बार मुंह से सर निकलता है, बाद में बोलते हैं सॉरी मैम। ठीक है, ऐसा ये कैसे बेटा आपका हेजिटेशन जाएगा? सबसे पहले तो आप ये समझिए कि जब तक आप बोलेंगे नहीं तो वो आपकी नॉलेज को जान ही नहीं पाएंगे। दे आर देयर टू नो व्हाट इज देयर इनसाइड यू। जबरदस्ती हेजिटेट करने का इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स अपने अंदर डेवलप सिर्फ आप अपनी वजह से करते हैं। ठीक है, किसी को आपके इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स से, आपकी वीकनेसेस से कोई लेना देना नहीं है, और ये तब जाएगा जब आपकी स्ट्रेंथ जो है उन पर आप काम कीजिए। ठीक है, हेजिटेशन तभी आता है अगर आपको लगता है कि मैं देखने में अच्छा नहीं हूं। तो मैंने आपको पहले ही बताया था वीडियो के पहले ही कि देखने का कोई मतलब ही नहीं होता है, कोई आपके लुक को बिल्कुल जज नहीं करेगा, बिकॉज दैट इज गॉड गिफ्टेड। और जो वहां पे इंटरव्यूअर्स बैठे होंगे वो बहुत अच्छे देखने में आप जैसे ही होंगे, ओके, सभी अच्छे लगते हैं, बस अपने आप को मेंटेन करके जाना है। दूसरी चीज, डर तब लगता है जब लगता है कि हमारा बैकग्राउंड बहुत अच्छा नहीं है, हम बहुत साउंड बैकग्राउंड से नहीं है, इकोनॉमिकल स्ट्रक्चर हमारा अच्छा नहीं, ये सब चीजें रेलेवेंट नहीं होती है। आप जिस चीज के लिए जा रहे हैं, अगर उनको लगेगा, लेट मी से इट वेरी क्लियरली, अगर आप नॉर्मल निकर और टी शर्ट पहन करके भी जाते हैं बेटा और उनको लगता है कि इस बंदे के अंदर टैलेंट है, तो वो आपको एज इट इज वहां से प्रूव कर लेंगे। तो बेवजह हेजिटेट नहीं करना है। ठीक है, अपने कपड़ों को लेकर, अपने बैकग्राउंड को लेकर, अपने लुक्स को लेकर के, अपने इकोनॉमिकल बैकग्राउंड को लेकर के बिल्कुल भी हेजिटेशन नहीं करना है। जाएगी कैसे? अपने नॉलेज को बढ़ाइए, अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स को बढ़ाइए। जब वो चीजें अच्छी हो जाएंगी तो आप जहां पर आपकी नेगेटिविटी उस पर वर्कआउट कीजिए, उसको लिखिए कॉपी में, शीशे के सामने जाकर के बात कीजिए। हेजिटेशन आपका सबसे पहले अपने आप से ओपन होना होता है। आप जब तक अपने आप को कन्विंस नहीं कर पाओगे बेटा, आप किसी को कन्विंस नहीं कर पाओगे। तो हेजिटेशन दूर करना है तो सबसे पहले स्टैंड इन फ्रंट ऑफ द मिरर एवरी डे एटलीस्ट फॉर 5 मिनट्स और अपने आप से आंखें मिला करके बात करो। 10 दिन बाद देखना तुम्हारा हेजिटेशन काफी लेवल तक गिर जाएगा और 1 महीने बाद बिल्कुल गायब हो जाएगा। ट्राई करना। ओके, थैंक यू सो मच सर। वेलकम। The next question is from Anju Maurya. Please unmute her. Sir, and the question is how to increase the level of awareness of the market. Level of awareness Of the market. ऑफ द मार्केट। अच्छा, मार्केट के लिए बेटा देखिए बहुत सारे बिजनेस मैगजीन्स आते हैं। ओके, क्या अच्छा ये बताओगे कि आपका स्ट्रीम क्या है? स्ट्रीम बता दो तो फिर मैं मैगजीन बता दूं आपको।
कोई बात नहीं, Please अगर unmute स्क्रीन नहीं भी Anju आती Maurya. तो देखो इकोनॉमिक टाइम्स आता है न्यूज़पेपर, ठीक है, इकोनॉमिक टाइम्स में जाइए, उसको पढ़िए अच्छे से। द हिंदू न्यूज़पेपर आता है, उसमें बिजनेस करके एक पेज आता है, ठीक है। इंडियन एक्सप्रेस है, उसमें भी बिजनेस का एक पेज आता है, उस पर पूरा ध्यान रखिए। जो भी अपकमिंग टेक्नोलॉजीज हैं, स्पेशली टेस्ला अभी चल रही है, राइट, और जितने भी बिजनेस टाइकून्स हैं स्पेशली इन द फील्ड ऑफ व्हाट शुड वी कॉल दैट, टेक्नोलॉजी सेक्टर, उन बिजनेस टाइकून्स को फॉलो कीजिए, ठीक है। बिल गेट्स क्या कर रहे हैं, और ये आपके एलन मस्क क्या कर रहे हैं, सुंदर पिचाई क्या कर रहे हैं, इनको बिल्कुल फॉलो कीजिए। देखिए इनके गूगल हो गई, बहुत बड़ी बड़ी जितनी भी कंपनीज है, गूगल है, टीसीएस है, माइक्रोसॉफ्ट है, इन्फोसिस है, इनको फॉलो कीजिए। अगर आप किसी मतलब अगर आप आईटी सेक्टर से या कंप्यूटर साइंस से हैं, अगर आप किसी और सेक्टर से हैं तो आप फॉलो कर, जैसे आप मैकेनिकल से हैं तो आप ओएनजीसी में जाकर के देखिए, जाकर के आपको देखना है कि भेल को देखिए क्या हो रहा है, सेल में देखिए क्या हो रहा है, इन कंपनीज में क्या क्या एडवांसमेंट हो रहा है, ठीक है। बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं जाना है, बस कंपनी देखो, उसकी प्रोफाइल देखो, उसका ग्रोथ देखो, और ये देखो उसमें क्या नया इनोवेशन, क्या नया इनपुट हो रहा है। और सबसे अच्छा सोर्स क्या होता है, इंटरनेट पे चले जाओ, और जब आप सर्च करोगे तो गूगल ऑटोमेटिकली रिलेटेड सर्चेस आपको देता रहेगा। अदरवाइज न्यूज़पेपर्स में जो इकोनॉमिक टाइम्स होता है या बिजनेस का जो पेज होता है, उस पर जरूर जाइए। और खासकर जो हेडलाइंस आती है, अगर किसी बिजनेस से रिलेटेड कोई हेडलाइन है, उसको जरूर लिखो, ठीक है, और उसको अच्छे से पढ़ो, समझो, और उसको नोट्स भी बनाते चलो, अंडरस्टैंडिंग बनाते चलो, फिर उस पर डिबेट्स वगैरह सुनते रहो। इससे आपको बिजनेस की अच्छी नॉलेज हो जाएगी, और धीरे धीरे जैसी ग्रेजुअली आप उससे रिलेटेड कोई टर्म सुनेंगे तो वो आपका नॉलेज डे बाय डे ऑटोमेटिकली बूस्ट होता जाएगा। बस एक बार बेस बनाना पड़ेगा। So the next question is from Amrit Pathak. Please unmute him. The question is, could you please elaborate on infrastructure term with the practical scenario? ओके 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 बेटा, मेरे इंफ्रास्ट्रक्चर का मतलब ये था कि आपके अंदर जो टेक्निकल स्किल्स है ना, उन टेक्निकल स्किल्स को आप बूस्ट कीजिए, ठीक है। उन टेक्निकल स्किल्स को आपको बूस्ट करना आना चाहिए। अगर आप सीएस आईटी के बच्चे हैं तो यू शुड बी वेरी वेल वर्स्ड विद योर लैपटॉप्स। लैपटॉप्स इन द सेंस कि जो लैपटॉप तो सबको चलाना आती है ऑब्वियसली, जो भी लैंग्वेज है, ठीक है, लैंग्वेज को जो भी कंपाइलर पड़ा हुआ है, वो कंपाइलर आपके लैपटॉप की शोभा ना बढ़ाए, बस इनफैक्ट आपके ब्रेन की शोभा भी बढ़ाए। तो आपको उसके साथ में काम करना अच्छे से आना चाहिए, ओके। एटलीस्ट आपके डोमेन में आपने जो कुछ भी सीखा है, उसमें ऐसा नहीं होना चाहिए कि कंपनी में, हाँ सर मैं सीख लूंगा 10 दिन में, उसके बाद मैं सीख करके आऊंगा, ऐसा नहीं होना चाहिए, राइट। यू शुड नॉट एंटर द ग्राउंड फॉर प्रैक्टिस, राइट। फर्स्ट यू प्रैक्टिस एंड देन यू एंटर द ग्राउंड। दिस इज व्हाट आई वांटेड टू से, कि अपना इंफ्रास्ट्रक्चर आप ऐसे बूस्ट कीजिएगा। इंफ्रास्ट्रक्चर का मतलब यही होता है, इफ यू वांट टू वर्क ऑन योर बॉडी, उनको लगता है कि थोड़े से अब मोटे ज्यादा हो गए, तो आपका इंफ्रास्ट्रक्चर आपकी बॉडी, उस पर काम कीजिए। आपका मेंटल इंफ्रास्ट्रक्चर आपको लगता है आप वीक हैं, ठीक है, या इनकॉम्पिटेंट है, या आप चीजों को रेशनलाइज नहीं कर पाते, तो उस पर प्रैक्टिस कीजिए। यहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर का मेरा मतलब ये है, फिजिकल, मेंटल और टेक्नोलॉजिकल, ये तीनों चीजें यू शुड बी रेडी बिफोर गोइंग थ्रू द रिक्रूटमेंट प्रोसेस। Good evening, sir. My name is Chiranjeev. I am Good from evening. EC third year. Actually, Okay. I want to ask that what to mention in our CV to apply for internship, as we won't be having any work experience while applying. So how to make our CV stand out? The first and the foremost thing which you should mention in your CV is that you are looking for a company which could inculcate, you know, excellent learning skills in you, and कंपनी की इतनी तारीफ करनी है कि वो आपको रेजिस्ट ही ना कर पाए, कि उसको लेना ही लेना है आपको, ठीक है। अपने सीवी में क्या होता है, जब भी आप किसी रिक्रूटमेंट ड्राइव में जाते हैं तो वहां पर सीवी में कुछ भी मेंशन करो, सच बोल रहा हूं मैं, वहां पर वो क्या मांगते हैं आपसे कि आप टाइम दे पाओगे कि नहीं दे पाओगे, छुट्टी कितनी कम मारोगे, ठीक है। टाइम अगर आप सीरियस कैंडिडेट, वो आप देखेंगे आपका स्कोर कार्ड क्या है, उसके बाद देखेंगे आप सीरियस हैं, आपसे पूछेंगे आप काम कर पाओगे या नहीं कर पाओगे, राइट। और फिर वो आपको 2-3 दिन नोटिस भी करेंगे, और उसके बाद में जो भी स्कोर कार्ड बना करके देंगे, सर्टिफिकेट में जो कुछ भी लिखेंगे, वो कंप्लीटली आपके परफॉर्मेंस पर डिपेंड करेगा। जनरली उनको पता होता है कि एक सेट फॉर्मेट होता है, और मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स हैव हैव दैट सेट फॉर्मेट, वो कहीं से उसको कॉपी पेस्ट करा लेते हैं और कंपनी में पहुंच जाते हैं। तो उनको जो वहां पर इंटर्नशिप आपको दे रहे हैं, उनको अच्छे से पता है कि आप क्या लेकर के आओगे, तो इट डजंट एक्चुअली मैटर्स एट ऑल। हाँ, आप अपने आप को एक्सप्रेस कैसे कर पा रहे हो, यू अपार्ट फ्रॉम दैट व्हाट यू हैव रिटन इन योर सीवी, उसके अलावा आप उनको कन्विंस कैसे करते हो, ठीक है। सर लोग 6 आवर्स काम करते हैं, आई विल वर्क 8 आवर्स,
आई एम हियर टू लर्न समथिंग न्यू, सो टाइम इज नॉट अ डोमेन फॉर मी। टाइम मेरे लिए कोई ऐसा मैटर नहीं करेगा कि आगे कोई कॉन्स्टेंट बन रहा है। इस तरह से कुछ भी मुझे नया सीखना है तो मैं कुछ भी करूंगा आपके यहाँ। थैंक यू सर। ये आपके अंदर इस तरह से फीलिंग होनी चाहिए, तब आपको 100% इंटर्नशिप मिलेगी। दिस इज व्हाट द रिक्रूटर्स वांट एक्चुअली। Okay. So the next question is from Ashish Kumar. Yes, Ashish. And the question is that how can we analyze the interviewer? Please You want to unmute analyze the yourself. interviewer? Is that the question? Yes, Only sir. that question. How can you analyze Ashish, the please interviewer? unmute yourself and go ahead. Yes, sir. My question was that how to analyze the interview so we can answer them well. Look, that's actually a very profound question, and it's really very obvious to analyze the interviewer, because the thing is, जैसे आप जो बोलते हैं ना बेटा, तो आपके बैकग्राउंड में और आपके जबान पर जो बातें हैं वो सेम होती हैं, पर इंटरव्यूअर आपसे किस डोमेन में क्वेश्चन पूछता है वो कोई नहीं बता सकता, वो मैं भी नहीं बता सकता। तो इट्स बेटर नॉट टू एनालाइज द इंटरव्यूअर। सिंपली अगर आपसे बात करने में ज्यादा इंटरेस्टेड है इंटरव्यूअर, दैट मीन्स कि वो आप में इंटरेस्टेड है। और बात करने में इंटरेस्टेड कैसे होगा? आपकी नॉलेज से, ऑफ कोर्स आपकी नॉलेज से, आपका प्रेजेंटेशन कैसा है, ठीक है, हाउ यू रिप्रेजेंट योरसेल्फ, तो वो तो डिपेंड करेगा ही। नीट एंड क्लीन टाइडी होना ही चाहिए। यू शुड बी, सुदर्शन कहते हैं हिंदी में कि गुड लुकिंग आप होने चाहिए। गुड लुकिंग का मतलब ये नहीं है कि आप ऋतिक रोशन बन जाए, गुड लुकिंग इन द सेंस कि आपने अपने आप को कैसे प्रेजेंट किया है वहां पर, ठीक है। दूसरी बात आती है कि नॉलेज आपके अंदर होना चाहिए। बेसिक चीजें ऐसा नहीं होना चाहिए कि वो आपसे पूछा और बेसिक चीज भी आप नहीं बता पाओ, वो बहुत बहुत बुरा इम्पैक्ट डालेगा आपके ऊपर। तो बेसिक चीज आपको जरूर पता होना चाहिए, और जो करंट टेक्नोलॉजी है, ट्रेंड्स है, इन पर आपको थोड़ी बहुत कमांड होनी चाहिए। इतना अगर है तो इंटरव्यूअर आपसे बात करेगा, और फिर अपनी बात को आप कितनी पोलाइटली, कितनी हम्बली और बिना किसी ऑस्टेंटेशन के रखते हैं। डोंट बी ऑस्टेंटेशियस, दिखावा नहीं करना बेटा, बिल्कुल दिखावा नहीं करना है। वो जो बैठे हैं आप जैसे हजारों आते हैं उनके पास में, दे नो ईच एंड एवरीथिंग, आपको देखकर ही समझ जाएंगे कि आपके अंदर कितना कैलिबर है, ठीक है। तो वहां दिखावा बिल्कुल नहीं करना, बी सिंपल, बी हम्बल। जो भी क्वेश्चन पूछे बता दीजिए अच्छे से, अगर नहीं आता तो पोलाइटली कह दीजिए सॉरी सर, आई हैव नो, आई डोंट नो, ठीक है, लेकिन आई लुक इनटू इट, आई डेफिनेटली लुक इनटू इट। उनको लगना चाहिए ना कि बच्चा ऑप्टिमिस्टिक है और पॉजिटिविटी लेकर के आ रहा है, आपसे मिल करके उनको अच्छा लगना चाहिए, एंड दैट्स इट। और कुछ भी नहीं, नॉलेज हो या ना हो, इट डजंट मैटर। आपसे मिल करके अगर इंटरव्यूज को अच्छा लग रहा है और थोड़ा बहुत बेसिक नॉलेज है तो डेफिनेटली दे विल गो फॉर यू। So the next question is from Himanshu Pal. Please unmute yourself, Himanshu. Yes, Himanshu? I think he's not there. So the Anybody else? question is regarding entrepreneurship and how it can be built by only a unique idea or some pre-used idea. Look, you would have heard about the term SWOT analysis, you know, strength, weakness and threats, opportunities and threats. तो आप जो भी बेटा आपके पास में आइडिया है, देखो पहली चीज तो ये है कि आप कभी भी एंटरप्रेन्योरशिप में जाना चाहते हैं तो मैं जो पर्सनली आपको सजेस्ट करूंगा कि आप पहले जाइए और किसी भी कंपनी में 1 डेढ़ साल 2 साल काम कीजिए, राइट। अभी इतने ज्यादा मुझे नहीं लगता है कि आप एनलाइटेंड है कि किसी भी कंपनी में अभी आपने इंजीनियरिंग किया और आप गए और वहां पे आपने सीखा और सीधे अपना कंपनी डाल दिया। इट्स नॉट दैट इजी, राइट। यू नीड इन्वेस्टर्स, और इन्वेस्टर्स आप में तब तक इंटरेस्टेड नहीं होंगे जब तक उनको लगे कि आपको प्रोफेशनल डोमेन में कुछ आइडिया है या नहीं है। पहले काम कीजिए, 1 साल 1.5 साल काम कीजिए, अच्छे से सीखिए, और सीखने के बाद में अगर आपको कोई आइडिया आता है तो उसको डिस्कस कीजिए अपने सीनियर्स के साथ में, उन लोगों के साथ में जिन पर आपको ट्रस्ट हो। और ट्रस्ट करने के बाद में डोर टू डोर, बहुत मेहनत का काम होता है बेटा, डोर टू डोर जाना पड़ेगा आपको इन्वेस्टर्स को, ठीक है, उनको पॉलिश करना पड़ेगा, बटरिंग करना पड़ेगा, और उनको समझाना पड़ेगा कि आपका आइडिया कैसा है। और दूसरों को समझाने से पहले यू शुड बी क्रिस्टल क्लियर इन योर माइंड कि भाई ये आइडिया वर्क करेगा या नहीं करेगा। देखिए जो भी इन्वेस्टर होता है वो बहुत ज्यादा क्लैरिटी मांगता है, बहुत ज्यादा ट्रस्ट मांगता है, उसके बाद ही पैसा देता है। क्योंकि आज के जमाने में एंटरप्रेन्योरशिप इज नॉट लाइक कि आपने 10-20 मिलियन लगा दिया हो गया इसमें से,
ठीक है, तो बहुत पैसा लगता है और इंडिया जैसे बिग डोमेन में इन्वेस्ट करने के लिए, अपने आप को स्टैब्लिश करने के लिए इट रिक्वायर्स अ लॉट ऑफ मनी। तो उसके लिए आपको काफी पैम्पर करना पड़ेगा इन्वेस्टर्स को, और इन्वेस्टर से पहले अपने नॉलेज को काफी पॉलिश करना पड़ेगा, बिकॉज इट वुड बी वेरी रिस्की अगर आप सीधे आप स्टेप इन कर सकते हैं। ठीक है, कैसे करना है मैंने आपको बताया कि पहले 1-2 साल काम कर लो, सीख लो, उसके बाद में किसी सीनियर के साथ में रहो और बैकअप जरूर बना करके रखो, ताकि अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो आप उसको फिर कोप कर पाओ उसके साथ में, अदरवाइज इट वुड बी वेरी डिफिकल्ट। Yes, sir. Thank you, sir. यू वेलकम। So one more question, the last one of the evening, Yeah. that how to answer if you don't know the answer, and it is from Abdullah Ansar. Okay, how to answer if you don't know the answer? Sorry sir, I don't know the answer. That's the best and the simplest answer you are supposed to answer. Okay, मैंने आपसे बोला ऑस्टेंटेशन बिल्कुल नहीं बेटा। ठीक है, आपको अगर आंसर नहीं आता है, आप सिंपली उनसे कहिए कि सर स्किप हो गया है, सर मिस हो गया, मैंने पढ़ा था, अभी मैं रिकॉल नहीं कर पा रहा, आई एम सॉरी, आई विल लुक इनटू इट। बहुत पोलाइटली कह दीजिए। ठीक है, ऐसी आप ये क्वेश्चन आपका अगर है कि सर आंसर आता है पर मुझे ये नहीं समझ में आ रहा कि मैं कहूं कैसे, मैं बोलूं कैसे, ठीक है, तो बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करो, टूटी फूटी जो भी लैंग्वेज है वैसे स्टार्ट करो और उनको कॉन्फिडेंस मिलो, धीरे धीरे अपने आप को एक्सप्लेन वो तुम्हें खुद ही करने देंगे। अगर तुम बेसिक चीजें जो है, बेसिक स्टेटमेंट्स होते हैं जो किसी भी आंसर के लिए कोई अगर अलग से अगर लगता है तो मैं बता दूंगा लेक्चर में कि कैसे अपने आप को एक्सप्रेस किया जाता है, इतने शॉर्ट टाइम में बताना बड़ा मुश्किल है, पर कुछ बेसिक स्टेटमेंट्स होते हैं, की नोट्स होते हैं, वो आप याद कर लीजिए अगर आप ऐसे नहीं बोल पाते हैं फ्लुएंटली। और स्टार्टिंग हमेशा वहीं से कीजिए, किसी कोड से स्टार्ट कर दीजिए, जैसे मैम ने अभी लेक्चर के स्टार्ट में किया था, तो ऐसे ही आप भी कर सकते हो। ठीक है, उससे उसका थोड़ा इंटरेस्ट आपके अंदर आएगा। तो अगर थोड़ा बहुत इधर उधर आप डाइवर्ट कर भी देते हो फिर भी वो एडजस्ट कर लेगा इतना। लेकिन अगर आंसर नहीं आता है तो उसको आंसर नहीं करना है, बिल्कुल आंसर नहीं करना है। ठीक है, अब कोई ऐसी चीज आपसे पूछ लेता है कि भाई आपने लास्ट नॉवेल कौन सी पढ़ी थी, तो आप कोई भी नॉवेल का नाम बता दीजिए। ठीक है, फिर उसकी कोई स्टोरी मन बता दीजिए, दैट्स अ डिफरेंट थिंग। पर अगर वो आपसे लूप का क्वेश्चन पूछ रहा है, अगर आपसे पूछ रहा है भाई किसी में हेडर फाइल्स क्यों लगाते हैं और आप बता नहीं पाओगे उसको, आपको आंसर नहीं आता, तो बेटा क्या बताओगे कि सुंदर लगती है इसलिए झाड़ू लगा देते हैं ऊपर, ऐसे तो नहीं काम चलेगा ना। इसलिए जो आंसर नहीं आता वहां सिंपली पोलाइटली कह देना सॉरी सर आई डोंट नो। ठीक है, या आई एम अनेबल टू रिकॉल, मैंने पढ़ा था भी मैं भूल गया, या आई विल डेफिनेटली लुक इनटू इट, मैं जरूर पढ़ूंगा इसको। इस तरह से पोलाइटली आंसर दीजिए उसको। ठीक है, So students have shared the feedback form in the chat box for you all to fill in for attendance, and also please mention the major takeaway from this session. Now, sir, I would like to wind up the session. No Okay. duty is more urgent than that of returning thanks. I, on the behalf of Training and Placement Cell, Faculty of Engineering and Technology, University of Lucknow, would extend a vote of thanks to you, sir. We are truly benefited by your words of wisdom. It was a very realistic and an interesting session. Thank you so much. thank you for inviting me, madam, thank you so much. I request the host to please end the meet.